आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम 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 आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। Om, a mother of delight, a mother of consciousness, a mother of truth, O supreme. माँ, मते तुमर आनंद चेतना और सत्य प्रदान कर। करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज ही दिव्य परिसर रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ अभिप्सु अपभाई को मोर हृदय भरा प्रणाम। प्रभुंकर जन्मवार्षिक उपलक्षे अगस्ट मासर 1 तारिख धारावाहिक भावे मातृ उपनिषद रु गोटे गोटे पंक्तिर आलोचना करा जाउथिला। यह बहुत सुंदर सरल और हृदयस्पर्शी मध्य थिला। तो आज में सेप्टेम्बर मंथ सेकेंड डे दिवस रे आगमन करिछे। ए सब किछि मां को चाहिबा अनुजय ही चलीछि। मां हेउछन्ति जगत माता, दिव्य जननी, जगत जननी, विश्व कल्याणी। से आमको नूतन चेतना बा नूतन दिग्दर्शन और आलोकर मार्ग देखाई निमंते ए धरापृष्ठ रे अवतीर्ण। केवल सेतिकी नुहे, मां ही चिरंतर आशा भरोसार एकमात्र ज्योति स्वरूप। आज जदि आमे समस्ते एकत्रित होइचे, यह केवल तांकर दिव्य कृपारु संभव होई परिछि। वर्तमान आम निकटरे इना आपा छन्ति। अपा मन आपनको समस्तंक तरफरु स्वागत। वंदे मातरम। अपा, आज आपनका टॉपिक रहिछि हु इज दिस मदर। अगेन वी विल all welcome to you and waiting to you. Please come and continue your speech. Inapa. Thank you, bhai. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo. Vande Mataram and Namaste to everyone. Today, I have got the opportunity to speak on the topic, who is the mother? I pray to the mother to give me blessings so that I can do justice to the topic. I have heard from my elders that Sri Aurobindo has written a lot about the mother. He has written a book called The Mother, where he has written very deep facts about the mother. But I will try to explain the same in simple ways that we children can understand. My elders have told me many things about the mother. The mother is not just like our mother at home.
She is something even greater, even more loving, even more powerful. Sri Aurobindo, the great yogi and teacher, explains who the mother really is. So just like every child has a mother who gives love, food, care and protection, the entire universe also has a mother. Sri Aurobindo says, the mother is the divine who has taken a form to guide us, love us and help us grow. She is not far away. She is present in the flowers, in the light of the sun, in the kindness of people, and most of all, in our hearts. For example, imagine the sun. Its light touches everyone, rich or poor, big or small. It doesn't say, I will give light only to this person and not to that one. The mother is like that sunlight, giving love, guidance and blessing to all. Sri Aurobindo explained that the mother works in 4 special ways. The first special way is Maheshwari, the mother of wisdom. She gives knowledge, clarity and understanding, just like a teacher who explains things patiently until we understand. The second way is Mahakali, the mother of strength. She gives courage, power and removes fear. She is like a superhero who saves people in danger. She gives us strength when we feel weak. The third way is Mahalakshmi, the mother of love and beauty. She fills our hearts with love, kindness and harmony, like the fragrance of a flower that makes everyone happy. And the fourth way is Mahasaraswati, the mother of work and perfection. She helps us do our work carefully and perfectly. That is when we draw, write or build something with care and patience. It turns out to be perfect. So, with these 4 aspects of the mother, we understand that she is like a wise teacher, a brave protector, a loving friend, and a careful guide, all in one. If we understand Mother's love, we know that she is always near us, even if we don't see her. When we close our eyes and pray sincerely, she hears us. She doesn't judge us by our mistakes, but encourages us to grow better. Her love is deeper than the ocean and wider than the sky. I will tell one short story to explain this. Once, a little boy in the ashram broke a vase. He was scared
the mother would scold him. But when he went to her, she gently said, "Don't worry, be careful next time." She only asked him to learn, not to fear. That is her love. As we know more about the mother, we get a thought. How can we feel the mother? For this, Sri Aurobindo says that to feel the mother, we must be quiet inside. How can we do this? We should quarrel less and we should be less angry. Then we should be truthful. We should never tell lies. Then we should be kind. We should help others or share with others. And lastly, we should remember the mother by prayer or concentration. When we do something good, like helping our parents, or when we share with our friend, we will feel a special happiness inside. So that is the mother smiling in our heart. Each one of us is her child. She wants us to become strong, wise, loving, and perfect, so that earth can become a beautiful place. When we call her with love, she always answers. So, when someone asks us, who is the mother? We can say, she is the Divine Mother, our guide, protector, and friend. She is in wisdom, in strength, in love, and in perfect work. If we open our hearts to her, she will fill our lives with joy and light. So we all can close our eyes for a moment. Think of the mother and say in our hearts, Mother, make me a child of light. So I'm going to conclude my talk by reading the Mother's Assurance. Mother's Assurance. No avatar or vibhuti could give such authentic assurance beforehand till earth exists. Remember me, remember, my child, I am always with you, deep in your soul. At all hours, remember, I watch over your life and progress with love and care and guide your uncertain steps. Remember me wherever you may be in the world. Repeat my name whenever you have a little time to spare. I am present everywhere. To see and feel my presence, my child, you have only to switch on the inner light I have inside you, outside you, above and below. You can feel my love with only a little warmth on your side. Remember, I never scold or punish. That is not my way. I am pouring my love in your heart, day and night. Remember,
I am your mother, father, counselor, and queen. Remember me always. I am closest, faithful, and dearest friend. Hide nothing from me. Depend on me for all your needs. Remember, you are my child. I can never be ashamed of you, whatever you do. Remember me. I shall give you sunshine, laughter, and joy in life, which no one can take away from you. In spite of your 1,000 mistakes, hold on to me. Remember, my child can never fail. Tell me all your plans and dreams. I am always with you. Remember, I love and protect you. Remember me when afraid. No one can do any harm to you. I want you to be really good, always happy, my child. Remember, I live in the hearts of all living beings, human and animal. When you are kind to anyone, remember you are kind to anyone. Remember you are kind to me. Be generous as the ocean. Fill the world with good thoughts and feelings. Be straight and simple. Remember me always, without fail. Enter your heart to know what I like. Remember never to tell a lie. I shall put within your reach all that is noble and beautiful. Have the utmost good will for all. Remember, all are my children. Remember me for any help, for I am always with you, day and night. Remember, my child, your life is worth living only in the service to the divine. The Mother. Thank you. Thank you, Inapa. Really, your speech was very nice, clear, and easily understand for all. Your story was beautiful. Our sweet, loving Divine Mother is a guider. She always protects us in every field of life. We cannot live without her. Always call to the Divine Mother, none other, because she is our Divine Mother. ଏହି ମଧୁମୟୀ, କୃପାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। Gratitude to the Divine Mother. Many more thanks to Inapa for all of us. Now, I request you to please you coordinate the next session. Vande Mataram. Victory to the Divine Mother.
Karuna Mahima, Param Prabhu Sri Aurobindo. Now I request Auromitra Appa to sing a song, to sing a prayer for the mother. Auromitra Appa. माँ प्रभुଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ନମୋ भगवते श्री अरविन्दाय। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। स्वर्णिमकांत मनोहरिकाया, हे विराट के रूप। स्वर्णिमकांत मनोहरिकाया, हे विराट के रूप। देखूं तब अनुपम झांकी, सुंदरतम तब स्वरूप। देखूं तब अनुपम झांकी, सुंदरतम तब स्वरूप। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। हे सौम्य सुशांत प्रशांत मौन, अखिलेश विश्व के स्वामी। हे दया सिंधु आनंद धाम के वासी, प्रभु निष्कामी। हे सौम्य सुशांत प्रशांत मौन, अखिलेश विश्व के स्वामी। हे दया सिंधु आनंद धाम के वासी, प्रभु निष्कामी। दया करो हे परम पिता, बनूं तेरे अनुरूप। दया करो हे परम पिता, बनूं तेरे अनुरूप। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। विश्वनाथ है विश्वहृदय, विश्वात्मा है विश्वेश्वर। विश्वनाथ है विश्वहृदय, विश्वात्मा है विश्वेश्वर। विश्वतीत विश्वमय है प्रभु, व्यष्टि भाव में ईश्वर। विश्वतीत विश्वमय है प्रभु, व्यष्टि भाव में ईश्वर। सर्वेश्वर अखिलेश्वर प्रभु, सब रूप अनंत रूप। सर्वेश्वर अखिलेश्वर प्रभु, तब रूप अनंत रूप। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। अलख गोचर अगम अकामी, अमर अजर अमलान। सदानंद सच्चिदानंद, हे श्री अरविंद भगवान।
भगवते श्रीअरविन्दाय अलख गोचरे अगमकामे अमर जर अम्लान सदानंद सच्चिदानंद हे श्री अरविंद भगवान पाऊं तब पदरज पावन है प्रभु वर वर के धाम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। माँ, थैंक यू। Thank you so much, Aramita Appa. What a beautiful and heartfelt song. The mother must be really happy, really very happy by listening to all of us little ones. She must be blessing us right now. So, Vande Mataram, Namaste and welcome to all. It is my privilege to introduce our esteemed speaker today, Dr. Shri Alok Pandey ji. Dr. Pandey is a devoted child of the Mother and Sri Aurobindo and a guiding light for many seekers on the path of integral yoga. A doctor by profession, he has dedicated his life to bringing not only healing of the body but also light and peace to the mind and soul. Through his writings, talks and heartfelt sharing, he makes the profound vision of Sri Aurobindo and the Mother clear and practical for our daily lives. We are truly blessed to have him with us today. With great joy and reverence, let us welcome Dr. Shri Alok Pandey ji to share his words of wisdom on the topic The Mother Book and Practice of Integral Yoga. I now request Dr. Shri Alok Pandey ji to please start his talk. जय माँ। आप लोग बहुत सुंदर सुंदर बातें बोल रहे थे, मैं सुन रहा था और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं वही सुनता रहूं। बहुत आनंद आ रहा था, किंतु चूंकि आपने एक विषय दिया है उसकी बात हम लोग करेंगे। हो सकता है कि मैं 6:30 बजे तक ना रुक पाऊं, लेकिन फिर भी जितना संभव होगा, जिस समय तक, तब तक मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगा। 24 नवंबर 1926 को श्री अरविंद श्री मां इनके योग में और इनकी यात्रा में, योग की यात्रा में 3 प्रमुख बातें होती हैं। एक बात जिससे हम सब लोग जानते हैं, जिसके बारे में बात होती है, और वो है कि श्री अरविंद और श्री कृष्ण का पूरा तादात्म्य, यानी जो श्री कृष्ण जो धरती पर अवतार के रूप में आए, उनका श्री अरविंद के साथ पूर्ण मिलन। जो श्री कृष्ण हैं वही श्री अरविंद बन गए, हम अगर ऐसे इसको समझना चाहें तो। द्वापर के अवतार और कलयुग के अवतार दोनों एक हो गए, क्योंकि अब आगे की जो काल गति है, जो संसार की, समाज की, जीवन की यात्रा है, आगे ले जाने का काम
उसको श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को सौंप दिया। तो ये तो एक घटना है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इसी के साथ साथ और इसी दिन श्री अरविंद एक प्रकार से पीछे की ओर चले जाते हैं और पूरी तरह अतिमानस जगत को नीचे लाने की चेष्टा में लग जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत साधना पूरी हो जाती है। ये वो दिन है जिस दिन उसको सिद्धि दिवस हम लोग कहते हैं, क्योंकि श्री अरविंद की व्यक्तिगत साधना उस समय उस दिन पूरी हो गई। और इसके साथ साथ श्री माँ को उन्होंने सामने कर दिया, जिससे कि कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर इस योग संबंधी या अन्य संबंधी कोई भी बात है तो वो श्री माँ के द्वारा ही अप्रोच करेंगे। इसके पहले लोग अधिकांश श्री अरविंद को ही सीधा लिखते थे या पूछते थे और उनसे उनके इंटरव्यू होते थे, लेकिन जहां तक माँ का प्रश्न है वो पीछे रहती थी। बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि माँ कौन है और क्यों आई है। किसी किसी को कुछ आभास था, किंतु पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। तो 24 नवंबर 1926 को श्री अरविंद श्री माँ को बिल्कुल सामने कर देते हैं। यानी कि उस दिन से के बाद से उन्होंने ये एक प्रकार का नियम बन गया था कि किसी को भी कुछ भी किसी तरह की योग संबंधी, जीवन संबंधी किसी विषय के बारे में पूछना है तो वो श्री माँ से ही बात करेगा। और श्री माँ का श्री अरविंद से जो भी उनका आपस में बातचीत होगी, लेकिन मुख्य चीज थी कि श्री माँ के द्वारा ही वो अप्रोच करते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए घर में भी हम देखते हैं कि कभी किसी को पिता से कोई चीज कहनी होती है तो अक्सर माँ से कहते हैं और माँ फिर पिता से वो चीज ला करके सबको देती है। तो श्री माँ श्री अरविंद का एक नया परिवार शुरू होता है उसी दिन, और वह परिवार जो अब बढ़ते बढ़ते आप सब लोग, हम सब लोग उसका हिस्सा बन गए हैं। किंतु उस परिवार का जो प्रारंभ होता है उसको श्री अरविंद आश्रम से जाना जाता है। तो तीसरी चीज यह शुरू हुई उस दिन के बाद 24 नवंबर 1926 को कि श्री अरविंद और श्री माँ का एक परिवार प्रारंभ हुआ। वो उस परिवार की जो पहली नींव है, जो पहला स्थान है जहां पर ये प्रारंभ हुआ, वो श्री अरविंद आश्रम है। हम सब उससे परिचित हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं उस दिन, किंतु इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि श्री माँ उस दिन के बाद सबकी साधना का भार अपने ऊपर उठा लेती है। इस घटना के करीब 2-3 साल पहले जब अमृतदा ने एक बार श्री अरविंद से पूछा कि श्री माँ लगता ऐसा है कि बहुत बड़ी योगी हैं, तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ ये सत्य है। तो फिर वो पूछते हैं कि लेकिन वे किसी को मेडिटेशन नहीं देती हैं, उनको अप्रोच करना कठिन था, तो वो अपने ध्यान मग्न रहती थी। श्री अरविंद की देखभाल, उस घर की थोड़ी बहुत जो लोग थे उन सब की देखभाल करना, किंतु बहुत अधिक वो मिलती नहीं थी किसी से। तो फिर श्री अरविंद कहते हैं कि हाँ, लेकिन एक दिन दिव्य प्रेम के कारण वे सबके बीच में आ जाएंगी और इस काम को संभाल लेंगी, और जिस दिन ऐसा होगा वो दिन सच में बहुत ही महान दिन होगा। इट विल बी ए ग्रेट डे। और इसीलिए श्री अरविंद बाद में अपने किसी ने साधक के प्रश्न पर वो कहते भी हैं कि श्री माँ के आने के पहले मैं स्वयं का रूपांतरण तो कर सकता था, आगे जा सकता था, सब कुछ प्राप्त कर सकता था, किंतु बाकी सब लोगों को गाइड करना, उनको आगे ले जाना, ये कठिन होता, ये संभव नहीं होता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ बच्चे को गर्भ में धारण करने के समय से सब कुछ उसको, उसकी तैयारी, उसकी शिशु अवस्था में देखभाल, उसके आगे की यात्रा, और इन सब में माँ का शुरू से अंत तक हाथ रहता है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि इस योग में भी या जीवन में भी 2 स्टेज होती है हमारी डेवलपमेंट की, हमारे विकास की।
पहली है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ को नहीं जानता, लेकिन उसका भरण पोषण कौन करता है? माँ ही करती है। तो इसको कहा गया कि अज्ञान की गर्भ में हम रहते हैं, तब हम माँ को नहीं जानते। ठीक है, हम लोग हो सकता है कुछ पढ़ लें, थोड़ा बहुत सुन लें, लेकिन उसमें और सीमा को जानने में एक अंतर है। जैसे हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि हंस क्या होता है, या हिमालय क्या है, या समुद्र क्या है, हम उसके बारे में किताब पढ़ सकते हैं, हम उसके बारे में एक स्लाइड शो या फिल्म देख सकते हैं, लेकिन उसमें और वास्तव में उसका अनुभव करना और परिचय प्राप्त करना ये कठिन होता है। वो तब तक नहीं होता जब तक हम स्वयं वो अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि अच्छा भगवान ऐसे होंगे, माँ ऐसे हैं, और हर चीज के बारे में जिन चीजों को हमने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, हम सबके मन में एक धारणाएं होती हैं, और वो धारणा स्वाभाविक है, बनानी भी चाहिए, वो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन उसमें और वास्तव में कौन है माँ, वास्तव में श्री अरविंद क्या काम कर रहे हैं, वास्तव में योग ये क्या है, ये तभी ज्ञात होता है, तभी पता चलता है जब हम इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। और ये यात्रा तभी शुरू होती है जब हमारे अंदर इस योग के प्रति एक कॉल, एक अभिप्सा, एक एस्पिरेशन जागृत होती है। उसके पहले हमारा माँ के साथ संबंध वैसे होता है जैसे सारी सृष्टि का माँ के साथ संबंध है, जो शुरू में बहुत सुंदर सी बात बोली कि ऐसे ही इस ब्रह्मांड की भी जननी है। तो वो एक संबंध होता है जहां माँ सबकी सुरक्षा, सब जो हम लोग माँ के साथ सहायता मांगते हैं, और माँ से हम जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा होती है वैसा संबंध जोड़ते हैं, वो एक प्रकार का संबंध है। वो है जगत जननी माँ का उनके विश्व रूप के साथ संबंध। तो उस विश्व में सबका उनके साथ संबंध है, अलग अलग तरह से, केवल मनुष्यों का नहीं, केवल उनका नहीं जो विश्वास करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम लोग माँ के जीवन में ये देखते हैं कि कैसे वृक्ष भी उनके पास आते थे। जब कोई जो बनियान ट्री है ऑरोविल का, जब लोगों ने उसको काटने की बात सोची थी, तो वृक्ष आता है माता जी के पास, जो कौवा है वो आता है, जो कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, ये सारे माँ के पास आके अपने अपने ढंग से उनका संबंध बनता था माँ के साथ। तो एक तो ये संबंध है, वो एक विश्व जननी के साथ, जगत जननी माँ के साथ संबंध है। लेकिन वो योग का संबंध नहीं है। योग का संबंध तब होता है जब हम इस योग के बारे में केवल एक मानसिक जानकारी या किताब से पढ़ी जानकारी नहीं होती है, किंतु वास्तव में हम इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं कि हिमालय के ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर फिल्में आई हैं, गंगा के ऊपर आई हैं, और देखने से बड़ा आनंद आता है कि अरे वाह कितना सुंदर है, अद्भुत है ये पर्वत। लेकिन वो फिल्म देख लेना, उसके बारे में पढ़ लेना और पर्वतारोहण करना, उस पर चढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ज्यादातर हमारे जो संबंध हैं माँ के साथ वो विश्व जननी के रूप में है। सुंदर बात है, बहुत अच्छा है, और हम सब वो संबंध कोई भी जोड़ सकता है कहीं पर भी पूरी सृष्टि में, और वो कोई मनुष्यों को ही प्रिविलेज नहीं है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको प्रिविलेज है। लेकिन जो योग यात्रा है वो एक सीरियस चीज है, सीरियस इस सेंस में कि उसके लिए एक लंबी तैयारी की जरूरत होती है। जैसे पहाड़ के बारे में जानना, पढ़ना, सिनेमा देखना और पहाड़ पर चढ़ना, ये दो अलग बातें हैं। जब हम ये मन हृदय के अंदर हमारे भाव आता है कि नहीं, हमको तो ये केवल हम मन से जान करके काफी नहीं है, हम ये पहाड़ जो रूपांतरण की जो प्रोसेस है, जो लक्ष्य मनुष्य के सामने रखा है श्री अरविंद ने, उसके विषय में हम केवल मन से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से जानना चाहते हैं, या हम पूरी तरह माँ के होना चाहते हैं। एक जब अज्ञान का संबंध होता है तो वो संबंध ये होता है कि माँ हमारे लिए सब कुछ करती है और हम उसमें आनंदित होते हैं, ये एक संबंध है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है या गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका संबंध ऐसा ही होता है माँ के साथ,
कि माँ मेरे लिए सब कुछ बच्चे के लिए माँ करती है। ये एक संबंध है, बड़ा सुंदर संबंध है, इसका अपना एक उचित स्थान है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वही माँ क्या चाहती है? माँ ये चाहती है नहीं कि वो सब कुछ नहीं कर सकती बच्चे के लिए, लेकिन माँ चाहती है कि ये बच्चा खुद ही सक्षम बने, वो पूरी तरह माँ से जुड़ा रहे, माँ से ही सीख रहे, लेकिन वो धीरे धीरे वो तैयार हो, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो वही है। माँ ये नहीं चाहेगी, कोई भी माँ, कि मैं बच्चे को हमेशा उंगली पकड़ के चलाऊं, मैं हमेशा अपनी गोद में लेकर के चलाऊं। तो ये जब प्रयास प्रारंभ होता है तो उसको योग कहते हैं। योग का अर्थ है कि अब मैं केवल ये नहीं कि माँ मेरे लिए सब कुछ कर रही है, बल्कि अब मैं वह करूंगा जो माँ चाहती है कि मैं करूं, जिसके लिए उन्होंने मुझे जन्म दिया है। क्योंकि जब कोई भी माँ बच्चे का जन्म देती है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक प्रयोजन होता है। वो प्रयोजन केवल ये नहीं है कि एक बच्चा मुझे चाहिए और मैं बच्चे के साथ खुश रहूंगी, वो तो ठीक है, वो है, लेकिन वो बच्चा बड़े होकर के क्या करेगा, क्या बनेगा। तो वैसे ही जगत जननी माँ चाहती है कि हम सब अपनी इस शैशव अवस्था से बाहर निकल करके हम भगवान के जैसे बने, क्योंकि वही हमारा मूल प्रयोजन है। अब ये बहुत कठिन कार्य है और इसको श्रीमा श्री अरविंद रूपांतरण की बात करते हैं। रूपांतरण यानी अभी हम सब अपने मुख्य स्वरूप में, मूल स्वरूप में भगवान है, दिव्य है, लेकिन हमारा जो बाहरी रूप है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो तो बहुत सीमित है, अज्ञान से भरा है। तो रूपांतरण का अर्थ है कि ना केवल अपनी गहराई में, उसमें तो सब लोग भगवान हैं, सबके अंदर माँ है, लेकिन हमारी बाहरी रूप, हमारी रूप से अर्थ केवल भौतिक शरीर की नहीं है। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारी वाणी है, हमारा जो मन है, हमारे विचार, हमारे हृदय, उसके अंदर उठने वाले भाव, हमारे जीवन के संकल्प, हमारी प्राण की ऊर्जा, ये सब कुछ दिव्य के भगवान के समरूप होती चली जाए। यानी हम सब जो छोटे छोटे बाल गोपाल उनके चारों तरफ हैं, वो धीरे धीरे बड़े होकर के हम स्वयं भी ईश्वर स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाएं। ये एक लंबी प्रोसेस है और स्वाभाविक है, इसमें एक लंबी परिवर्तन और लंबी यात्रा जो कई तरह से कठिन भी होती है। तो उसी के संदर्भ में, क्योंकि 24 नवंबर 1926 से श्री अरविंद आश्रम प्रारंभ होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का फाउंडेशन डे है, जैसे हम लोग करते हैं कि नहीं ये फाउंडेशन डे है, उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो एक आश्रम का फाउंडेशन डे बन गया है। क्योंकि उस दिन के बाद साधकों का, अगेन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक संबंध है जो हम जगत जननी के साथ जोड़ते हैं, जो अनेकों लोगों ने जीवन में, संसार में इसके पहले भी जोड़ा हुआ है और आगे भी जोड़ेंगे। किंतु जब इस संबंध में एक और नई चीज जुड़ जाती है, नई चीज क्या है कि माँ आप हमें सब दे रही हो, सब कर रही हो, लेकिन जिस दिन हम ये कहते हैं कि आप क्या चाहती हो हमसे, कि हम क्या करें, हम आपके लिए क्या करें, हम आपको कैसे अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करें, आप हमको प्रेम देती हो, लेकिन हम कैसे आपको प्रेम दें। तो जिस दिन ये भाव आ जाता है कि हम स्वयं को माँ के लिए प्रस्तुत करते हैं, माँ के प्रयोजन को जीवन में सार्थक करना चाहते हैं, जिस पर्पस से दिव्य जननी डिवाइन मदर ने हम सबको जीवन में लाई है, उसको हम जब पूरा करना चाहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि योग यात्रा प्रारंभ होती है। अब स्वाभाविक था कि जब ये आश्रम बनता है और श्री माँ को श्री अरविंद सामने कर देते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि उसके पहले सब सीधा श्री अरविंद जैसे गुरु हैं या अवतार हैं, और उनके थ्रू वो अपने अपने ढंग से जो समझ आता था, कुछ किताबें पढ़ते थे आर्या, और कोई कठिनाई होती तो श्री अरविंद से उसकी बात होती थी। एक आश्रम या सामूहिक योग के रूप में कोई चीज नहीं थी। तो जैसे ही आश्रम बनता है 24 नवंबर 1956, तो 21 फरवरी 1927 में सबसे पहले दर्शन दिवस होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि दर्शन दिवस जो होते हैं वो 4 दिनों को, पहले 2 केवल सीमा और श्री अरविंद के जन्मदिन पर होते थे, बाद में उसमें 24 नवंबर सिद्धि दिवस भी जुड़ गया, और फिर बाद में 24 अप्रैल
1938 के बाद 24 अप्रैल भी जुड़ गया। तो ये 4 दर्शन दिवस है। तो जो पहला दर्शन दिवस 21 फरवरी 1927, उस दिन श्री अरविंद ने एक लंबा मैसेज दिया, और वो जो मैसेज था, हम सब जानते हैं कि दर्शन दिवस पे एक संदेश मिलता है, शुरू से मिलता था। तो वो जो पहला मैसेज था वो माता पुस्तक का पहला चैप्टर है। तो ये जो पहला चैप्टर हम देखते हैं वो वास्तव में वो मैसेज क्या है? वो मैसेज इसलिए है कि अब श्री अरविंद बताना चाह रहे हैं हम सबको कि यह योग क्या है। वो हम सबको अब एक किस बात से परिचित कराना चाहते हैं कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं। और सबसे पहले वो स्पष्ट कर देते हैं, there are 2 powers that alone can affect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavor, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme grace from above that answers। वो ये कह रहे हैं कि ये योग अपने आप कितना भी बड़ा कोई तपस्वी हो, साधक हो, वो नहीं कर सकता है। वो हम क्या कर सकते हैं? कुछ है जो हमको करना है, कुछ है जो डिवाइन मदर को करना है। ये स्पष्ट कर देते हैं वो। ये योग में, योग का मतलब है मिलन। तो ये वैसा वाला मिलन नहीं है कि हम अपनी जगह बैठे रहेंगे और भगवान सब कुछ हमारे लिए कर देंगे। ये तो एक प्रकार का तमस हो गया। ये तो एक प्रकार की, जैसे कोई बच्चा बोले कि माँ मैं तो अपने कुर्सी पर बैठा रहूंगा, आप लाओ मुझे खाना, खाना मुझे खिला भी दो। तो ऐसा बच्चा फिर कैसा बच्चा बनेगा? वो तो पैरालाइज्ड रहेगा। तो माँ ये नहीं चाहेगी। जब बच्चा घर में होता है या बिल्कुल बाहर होता है तो माँ ये करती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको अपना एफर्ट करना पड़ता है। तो क्या हम लोगों को क्या करना है? श्री अरविंद कहते हैं अभिप्सा करनी है। फिक्स्ड एंड अनफीलिंग एस्पिरेशन, यानी कि ये कुछ क्षणों की अभिप्सा, कुछ देर हाँ हमको योग करना है, ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर हम लोगों ने सत्संग कर लिया, थोड़ी देर एक मीटिंग कर ली, ये एक हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। यानी अगर हम इसको नींद में भी कोई उठा के पूछे तुम क्या चाहते हो, तो हमारे मुंह से केवल एक शब्द निकलना चाहिए, माँ। हम वो चाहते हैं जो माँ चाहती हैं। ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, हम वो चाहते हैं जो माँ चाहती हैं। जिस दिन ये भाव हमारे अंदर पूरी तरह जागृत हो जाएगा तो उस दिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर वास्तव में अभिप्सा जागृत हो गई। अब 2 बातें हो गई, एक हमारी अभिप्सा, दूसरा है कृपा। लेकिन स्पष्ट कर देते हैं, but the supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth. It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. For if it were to yield to the demands of the falsehood, it would defeat its own purpose. यानी कि अगर हम ये कहें, एक मानव माँ की बात कर लें, कोई बच्चा अगर जिद करे किस चीज की, कोई गलत चीज की जिद करे, अगर वो बोले कि नहीं नहीं मुझे तो वो चीज खानी है जो माँ जानती है कि वो नुकसानदायक है, और यदि माँ उसको मना करती है तो बच्चा रूठ जाए, माँ को कोसने लगे, तो कैसे काम करेगी माँ? तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो एक श्रद्धा का संबंध होना चाहिए। माँ हमारे लिए सब कुछ करेंगी, सब कुछ दे सकती हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि हम उनसे उन चीजों की डिमांड करें और उसको लेकर के रोने लगे, बिलखने लगे और कंप्लेंट करने लगे, जो चीजें हमारे लिए हानिकारक है और माँ वो हमें नहीं दे रही हैं, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर ये भाव है कि अगर हम चाहते हैं कि माँ की जो सर्वोच्च शक्ति, यूनिवर्सल मदर के रूप में एक अलग बात है, सर्वोच्च शक्ति उनकी रूपांतरणकारी शक्ति है। तो यदि उनकी रूपांतरणकारी शक्ति हमारा रूपांतरण करे तो हमको माँ के हाथों में स्वयं को सौंपना होगा। हम तब ये नहीं कह सकते कि हमारी ये डिमांड है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। यदि हम इस तरह से करेंगे और माँ उन डिमांड्स को, हमारी इच्छाओं को ही पूरा करती रहेंगी तो रूपांतरण नहीं होगा। वो तो 2 प्रकार के संबंध निकलते हैं। मुख्य चीज है कि रूपांतरण हम चाहते हैं कि नहीं। तो ये पूरा मैसेज था लंबा, जिसमें श्री अरविंद बताते हैं कि हमको दिव्य जननी के प्रति हमको क्या एटीट्यूड, हमारी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो वहां पर एक चीज कहते हैं स्पष्ट रूप से, बहुत ही सुंदर और हमेशा स्मरण रखने वाली बात है कि हम लोग को माँ के प्रति समर्पण करना है। लेकिन इस समर्पण का क्या अर्थ है?
समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि हम जैसे एक पत्थर है वो भी उसने समर्पण कर दिया है। ये समर्पण जो है वो सक्रिय समर्पण है। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि मैंने माँ को समर्पण कर दिया, जो मेरे अंदर भाव उठ रहा है, जो विचार आ रहे हैं, जो मेरी इच्छा कर रही है मैं वो करूंगा क्योंकि मैंने माँ को समर्पण कर दिया। ये तो समर्पण नहीं हुआ। समर्पण का अर्थ ही है कि अब मैं वह करूंगा जो तुम चाहो, यानी इसमें ओबीडियंस अपने आप जुड़ा हुआ है। ये समर्पण वो नहीं है कि हमने पत्थर की तरह जो भी आएगा उठा के कहीं भी फेंक देगा, कहीं भी ले जाएगा, कोई भी तरंग में हम बह जाएंगे, कोई हमको कुछ भी कहेगा हम उसको मान लेंगे, सुनने लगेंगे, कोई कहेगा चलो वहां चलो तो वहां चले जाएंगे, मन के अंदर एक विचार उठेगा उसके अधीन हो जाएंगे, तो वो समर्पण नहीं है। ये श्री अरविंद हमको स्मरण करा रहे हैं। एंड इनर्ट पैसिविटी इज कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज्ड विद द रियल सरेंडर, but out of an inert passivity nothing true and powerful can come। तो अगर हम केवल ये कहेंगे कि अब जीवन में जो हो रहा है वो माँ कर रही है, ये कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि मैंने समर्पण कर दिया, जो हो रहा है मतलब मेरे मन में जो भी भाव उठ रहा है वो माँ कर रही है। नहीं, हमको यहाँ सचेत रहना है क्योंकि वो हमारी पूर्व की गति से, हमारे लोअर नेचर के कारण बहुत कुछ हमारे अंदर उठेगा जिसको हमको स्वीकार नहीं करना है। तो वहां पर ये आवश्यक है कि यदि हम एक प्रकार से पत्थर की तरह अपने आप को समर्पित कर देंगे तो फिर क्या होगा कि हम हर प्रकार के ऑब्सक्योर और अनडिवाइन इन्फ्लुएंस, हर प्रकार की विरोधी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, इन सब के अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 चीजें बताते हैं। ए ग्लैड एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल सबमिशन इज डिमांडेड टू द वर्किंग ऑफ द डिवाइन फोर्स। तो ग्लैड, प्रसन्नचित होकर हम माँ को कि माँ हम प्रस्तुत हैं, आप हमसे जो कार्य करवाना चाहती हो आप वो कार्य करवाओ। तो यहाँ पर पहला तो ये है, ये नहीं कि मेरी मर्जी के हिसाब से, जो मेरी मर्जी के हिसाब से चलते हैं वो निश्चित रूप से वो पद से दूर जा रहे हैं। दूसरी चीज, द ओबीडियंस ऑफ द इल्यूमाइंड डिसाइपल ऑफ द ट्रूथ। ओबीडियंस, तो जब हम माँ श्री अरविंद को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कौन सी चीजें जो इस जीवन में हमको योग के जीवन में स्वीकार करनी चाहिए, कौन सी चीजें जो जिससे हमको बाहर निकलना चाहिए, किस तरह। एक छोटी सी चीज है, कहते हैं कि जैसे हमारी वाणी, उस पर संयम होना चाहिए, मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें करनी है। यदि हम करेंगे तो हमको पूरी सहायता मिलेगी माँ की, ये नहीं कि हमको इसको अकेले करना है। लेकिन यदि हम ये कहेंगे कि नहीं जो कुछ मेरे अंदर हो रहा है सब माँ कर रही है, तो ये योग नहीं हो सकता है। Of the inner warrior who fights against obscurity and falsehood। तीसरी चीज है कि जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के साथ हैं, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन का युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हर कदम पर उनके साथ हैं। तो युद्ध अपने जीवन का हम लड़ेंगे चैलेंजेस के रूप में, लेकिन माँ सतत हमारे साथ रहेंगी, जितने भी क्रूशियल मोमेंट से इंटरवीन करेंगी। वास्तव में अगर हम देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली हमको सहायता, शक्ति, सब कुछ दे रही है अगर हम खुले रहेंगे। लेकिन युद्ध जो होगा युद्ध भूमि में, तो वो चैलेंजेस हमारे जीवन में जो आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, वो सब हमारे विकास की अवस्थाओं के लिए आवश्यक है। जैसे एक बच्चा जब एग्जाम में जाता है तो उसकी माँ उसको तैयार करती है, माँ परीक्षा नहीं लेती है। ये कई लोग सोचते हैं माँ परीक्षा नहीं लेती है। माँ तो बच्चे को तैयार करती है परीक्षा के लिए, और शिक्षक भी उसको तैयार करता है, लेकिन परीक्षा बच्चे को खुद देनी होती है। वहां पर ये नहीं है कि माँ आकर के कलम उठा करके लिख देगी। क्यों? क्योंकि ये विकास का विधान है। ये नहीं हो सकता कि माँ बोले कि मैंने बच्चे को सब पढ़ा दिया, इसको प्रमोट कर दो। वो विकास का विधान है कि हम सब जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, माँ नहीं है। माँ हम सबको सहायता देती है, हम सबको तैयार करती हैं, लेकिन जो परीक्षा होती है वो स्वयं हमें देनी पड़ती है। तो वो हमारा युद्ध होता है अंत में, ऑफ द फेथफुल सर्वेंट ऑफ द डिवाइन। तो हमको माँ का सेवक बनना है, उनका योद्धा बनना है, उनका एक प्रकाशवान, उनका शिष्य बनना है, और उनका एक समर्पण के भाव से उनके तरफ अपने आप को खुला रखना। तो ये पहला पत्र था जिसको मैसेज के रूप में दिया गया, ये मैसेज के रूप में दिया गया था। बाद में ये इस संकलन में जो माता पुस्तक है जिसके बारे में आप लोगों ने
कहने की बात की है, तो वो बाद में जब माता पुस्तक संकलित होकर पब्लिश हुई, ये मैसेज दिया गया 21 फरवरी 1927 में, लेकिन ये जो पुस्तक आई 1928 में। तो ये पहला मैसेज था जो इसका चैप्टर 1 बना। अब चैप्टर 2, ये एक शिष्य थे, उन्हीं शिष्य को 2, 3, 4 ये तीनों दिए गए, लेकिन चैप्टर 2 दिया गया उसी पत्र में जो शिष्य को लिखा गया, उसमें श्री अरविंद ने इसको आगे चल के ये ऐड किया, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि इस योग में हमको क्या करना है, हम क्या करें, ध्यान करें, कैसे करें, क्या करें। तो ये दूसरे चैप्टर में श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि in all that is done in the universe, the divine through his Shakti is behind all action, but he is veiled by his Yoga Maya and works through the ego of the Jeev in the lower nature. ये तो सच है कि सब कुछ जो होता है भगवान करते हैं, लेकिन वो पीछे होते हैं, और योग माया के द्वारा वो क्या करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। हर किसी की भिन्न भिन्न प्रगति, उसके अनुसार भगवान उसको देते हैं जो उसको आवश्यक है, और उस अनुसार चलते हैं। यानी अब देखा जाए तो कर्ण के अंदर भी कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं और अर्जुन के अंदर भी प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से, जिसकी जो तैयारी है। तो योग माया का अर्थ यही है कि एक ही चीज सबको नहीं कही जाती है। जैसे आप एक नर्सरी से लेके पीएचडी जो बच्चे, सभी बच्चे एक दृष्टि से, लेकिन ये नहीं होता कि हर एक स्टूडेंट को एक ही बात बताई जा रही है। सबकी स्टेज के अनुसार भगवान उसको ले जाते हैं। और कैसे, आमतौर पर नॉर्मली क्या होता है, उसके ईगो को वो चलने देते हैं, लेकिन पीछे से उसमें डायरेक्ट करते रहते हैं। जहां चीजें बहुत खतरनाक हो रही हैं और अगर कॉल आती है तो उसमें इंटरवीन भी करते हैं। कई बार उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो विकास की प्रोसेस है। लेकिन जो साधक है उसको तो ईगो को हटाना है अपने अंदर से, उसको ये निम्न वृत्तियों से छुटकारा पाना है। तो उसमें 3 चीजें जो हम लोगों को करनी है वो ये कि एक है एस्पिरेशन, दूसरा रिजेक्शन और तीसरा सरेंडर। एस्पिरेशन मतलब हमको जीवन में क्या चाहिए, भगवान चाहिए। रिजेक्शन वे सारी चीजें जो भगवान के मार्ग में बाधक बनती हैं, जैसे क्रोध हुआ, बहुत सारी कामनाएं हुई, भय हुआ। इन चीजों से हमको अपना एफर्ट लगाना है विल का कि मुझे ये नहीं चाहिए। और जब हम अपने विल का एफर्ट लगाते हैं, जब हम प्रयास करते हैं उनसे मुक्त होने का, तो धीरे धीरे माँ की सहायता मिलती है और वो चीजें छूट जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको जस्टिफाई करते रहें, डाउट्स को जस्टिफाई करें, अपने फियर्स को जस्टिफाई करें, क्रोध को जस्टिफाई करें, तो वो चीज तो चिपकी रहेगी। फिर हमें और एक साधारण मनुष्य में क्या अंतर रहेगा। हालांकि सबके ऊपर माँ की कृपा है, सब के साथ माँ कार्य कर रही है, लेकिन साधक कॉन्शियस एफर्ट करता है, और जो साधारण जीवन है उसमें व्यक्ति कोई एफर्ट नहीं करता है, यानी उसकी चेष्टाएं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लगी रहती है। उसके साथ भी भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भगवान उसको कामनाएं हैं, कामनाओं की पूर्ति हुई तो उसको दुख हुआ, मिला, उससे अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के कारण दुख मिला। तो उसमें ये तो एक साधारण खेल है, इसमें भगवान पीछे खड़े होते हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कर रहे होते हैं, ये तो हमारे अहंकार का खेल चल रहा है। लेकिन जब हम साधक का प्रयास करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वहां पर हमको अपना प्रयास लगाना है, उन चीजों को अपने अंदर से हटाने का जो हमारे और भगवान के रास्ते में बाधक है। तो उन सब की पूरी एक बहुत सुंदर लिस्ट है। और समर्पण किसका, जो हम हैं, जो हमारा चरित्र है, हम उसको कहते नहीं हम तो ऐसे ही हैं। तो ये नहीं है, ऐसे करके कैसे होगा ये योग। हम कह देंगे हमने माँ को समर्पण कर दिया, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो जो हम हैं, जो हमारा चरित्र है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको हमको समर्पण करना है कि माँ इसको परिवर्तित करिए, इसका रूपांतरण हो, और अपना भी प्रयास करना है और माँ की सहायता भी मिलेगी। तो सरेंडर ऑफ वन सेल्फ एंड ऑल वन इज एंड हैज, जो हम हैं और जो हमारे पास जो कुछ दिया गया है, हमारे पास धन है या हमारे पास वस्तुएं हैं, घर है, परिवार है, इन सबको हमको अब ऐसे समझना है कि हैं हमारे पास, लेकिन वास्तव में ये दिव्य जननी के हैं और हमको ये माने दिए हैं।
तो अब हम उनके साथ कैसे उपयोग करेंगे, किस तरह से उसके साथ डील करेंगे, ये हमारे हाथ में है। और हमको उसका ध्यान रखना है कि अब आज से कोई भी चीज ये है हमारे पास लेकिन हमारी नहीं है, हम ट्रस्टी हैं, ये है माँ की, तो हम उसके साथ ये बोल के नहीं कि ये मेरी चीज है, मैं जैसे चाहूं घर में कोई चीज कैसे भी फेंक के रख दूं, अपनी वाइफ है, हस्बैंड है या बच्चे हैं उनके साथ गुस्सा कर लूं। नहीं, वो माँ ने भेजा है रखने के लिए, हमको उनको ऐसे डील करना है कि उनके अंदर भी माँ है। और इस भाव से अभी जो बात हुई थी ना कि जब हम किसी के प्रति दयावान होते हैं तो हम माँ के प्रति दयावान होते हैं। तो हमको सारी सृष्टि में सबके साथ संबंध अब नए ढंग से जोड़ना है। हमारा है ये सोच के नहीं, माँ का है लेकिन हमारे पास है, तो अपने आप धीरे 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 हम इस यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये 2 पत्र हो गए, फिर 3, 4 और 5 ये जो पत्र हैं तीनों, ये एक उनके डिसाइपल पूनम चंद जी जो धन भी कलेक्ट करते थे श्री अरविंद के लिए, ये सेकंड जो है ये एक मेहता थे, उनको ये पत्र लिखा गया था। और उस पत्र को बाद में श्री अरविंद ने और आगे बढ़ा करके एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर लिखा। और 3, 4 और 5 ये पूनम चंद जी जो चंपकलाल जी जहां से आए वहां से उनका अपना एक सब ये लोग मिलके एक नवसारी के आश्रम में रहते थे। तो उनको श्री अरविंद ने धन की बात करी थी और वो माता जी का काम, श्री अरविंद का काम। तो हम देखते हैं कि 3, 4 और 5वां पत्र उससे संबंधित है, माँ के काम से संबंधित है। तो तीसरा तो ये है कि यदि तुम माँ का काम करना चाहते हो तो एम्बिशन कि मैं साधक हूँ, मैं माँ का इंस्ट्रूमेंट हूँ, बहुत तरह के एम्बिशन होते हैं, मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मुझे ये प्रमोशन मिल जाए, मुझे ये कुर्सी मिल जाए, मुझे ये अवार्ड मिल जाए, ये सारी चीजें अगर हैं तो ये फिर हमारी अभीप्सा और श्रद्धा अपूर्ण है, तो वो फलित नहीं हो सकती पूरी तरह। हमको पहले अपनी अभीप्सा को, सत्यनिष्ठा को, समर्पण को, इन सब को सही ओरिएंट करना है। तो उसकी बात 3 नंबर चैप्टर पे कहते हैं, टू वॉक थ्रू लाइफ आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फियर, पेरिल एंड डिजास्टर। कई बार लोग कहते हैं कि ये तो साधक था, उसके जीवन में ये घटना कैसे घट गई, उसके जीवन में ये बिल्कुल डिजास्टर कैसे हुआ, जिसको हम डिजास्टर कहते हैं। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि किसी भी प्रकार के तुम्हारे जीवन में कोई भी पेरिल यानी खतरा कुछ भी ना आए, तो तुम्हें हमको कुछ करना है। ये ऑटोमेटिक नहीं है कोई भी चीज कि भाई हम तो जाके माँ को प्रणाम कर लेते हैं, हमको विश्वास है तो सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है जीवन में सब अच्छा हो, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ वो कहते हैं कि 2 चीजों की आवश्यकता है, टू दैट गो ऑलवेज टुगेदर, 2 चीजें जो साथ साथ हमेशा चलती हैं। द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर, ये सच है कि माँ की कृपा के बिना कोई पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल सकती है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि एंड ऑन योर साइड कुछ है जो हमको करना है, एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। अगर श्रद्धा नहीं है, मन में डाउट्स भरे हुए हैं, फेथ, अगर हमारे अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है, हम कह रहे हैं माँ 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 कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चल रहा है मैं, तो ये तो विरोधाभास हो गया। यदि हम सच में कह रहे हैं माँ, तो हमको मैं को छोड़ना पड़ेगा, मैं और माँ एक साथ नहीं कहे जा सकते हैं। तो इसलिए सिंसेरिटी का मतलब है हमको हर क्षण जीवन में चुनाव करना है कि मैं ये कार्य अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने अहंकार के लिए कर रहा हूं, या वास्तव में माँ के लिए कर रहा हूं। माँ के कार्य जो करते हैं उनके अंदर से ये चीजें धीरे धीरे चली जाती हैं। और जहां अहंकार है कि मैं हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं, माता जी का काम मैं कर रहा हूं, यहाँ जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, और अपने हिसाब से हम चल रहे हैं, तो वो तो इनसिंसियरिटी है। तो माँ कहती है सत्यनिष्ठा बहुत आवश्यक है। और तीसरी चीज जो है समर्पण। और फिर वो बताते हैं कि हमारी सत्यनिष्ठा कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। एन egoistic faith in the mental and vital being tainted by ambition, pride, vanity, mental arrogance, vital self-will, personal demand, desire for the petty satisfactions of the lower nature is a low
and smoke obscured flame that cannot burn upward to heaven. यदि हम ये कहेंगे मैं तो माँ का काम कर रहा हूं, मैं जो मांगूंगा माँ मुझे कर दे देंगी, जो चाहूंगा माँ वैसा कर देंगी, तो ये योग नहीं है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि योग साधना और साधारण जीवन में अंतर है। तो यहाँ पर वो श्रद्धा ये नहीं कि जो मैं चाहूंगा, जो मेरे लिए सब अच्छा हो जाएगा, और अच्छे से हमारा मतलब है कि माँ हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगी। नहीं, ये दो अलग चीजें हैं। वो एक संबंध है जो हम जोड़ सकते हैं, वो एक लोअर संबंध है, तब योग की बात नहीं है। तो ये दो अलग चीजें हैं। और श्री अरविंद इसीलिए कहते हैं कि तुम अगर वो श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारी अभिप्सा उस ऊंचाई तक नहीं उठ पाएगी जहां से जो उच्चतम कृपा रूपांतरण की कृपा उतरे। ये एक लोअर संबंध है और एक हायर नेचर में अलग प्रकार का संबंध है। बहुत सुंदर ये तीसरा पत्र है। फिर चौथा वो मनी के बारे में, क्योंकि अगेन इस काम में पैसों की आवश्यकता है। किसी भी काम में पैसा किस लिए चाहिए? अंदर के लिए नहीं चाहिए। अंदर तो सब कुछ व्यक्ति, एक दरिद्र से दरिद्र निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है ये योग। लेकिन अगर बाहर आपको कुछ भी अभिव्यक्त करना है, एक केंद्र बनाना है, एक स्कूल चलाना है, एक कुछ भी माता जी का काम करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको धन की आवश्यकता है। क्योंकि बाहरी जगत में धन की एक फोर्स है। तो धन क्या है? तो धन कहाँ से आएगा? नेचुरल है कि साधक तो या तो वो ऐसे साधक हैं जो केवल माँ के कार्य के लिए धन कमाएंगे और उसको माँ के कार्य के लिए प्रस्तुत करेंगे, तो वो धन के द्वारा माँ से जुड़ते हैं। उनका यज्ञ यही होता है कि भाई हम धन कमा सकते हैं लेकिन हम अपने धन से माँ के कार्य के लिए प्रस्तुत करेंगे। और दूसरे वे हैं जिनको उस धन के द्वारा माँ का कार्य करना है, माँ के कार्य में लगाना है। तो दोनों कैसे जुड़ेंगे? जो माँ के कार्य के लिए धन चाहिए वो उनसे मांग सकते हैं कि मुझे ये माँ के इस काम के लिए धन चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का ये नहीं संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम सीमा के लिए कोई चीज मांग रहे। और अगर वो देगा साधक तो कोई बात नहीं, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, ये उसका यज्ञ है, ये चॉइस उसकी है, किसी की चॉइस को कोई कुछ नहीं करा। लेकिन यदि कोई देता है स्वेच्छा से, उसके पास जो धन है, अगर सच में तो देखा जाए तो सब कुछ माँ का दिया हुआ है, लेकिन कोई साधक यदि उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे देता है तो वास्तव में वो अपना ही कल्याण कर रहा है। तो यहाँ पर धन के बारे में जो चौथा चैप्टर है उसमें बताते हैं, और पांचवा कि माँ का काम कैसे किया जाए। तो ये तीनों उस व्यक्ति को लिखे गए जिनको श्री अरविंद ने एक विशेष कार्य सौंपा था, और नेचुरली अब ये हम सब पर ये लागू होते हैं, अप्लाई करते हैं। तो पांचवें चैप्टर में, इफ यू वांट टू बी ए ट्रू डूअर ऑफ डिवाइन वर्क्स देन योर फर्स्ट एम मस्ट बी टू बी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर एंड सेल्फ रिगार्डिंग ईगो। अगेन वो बात होती है कि जो भगवान का काम करना चाहते हैं, माँ का काम करना चाहते हैं, फिर उनको मैं को त्यागना होता है, फिर उनको अपनी इच्छाओं की, अपने कंफर्ट की, अपनी मुझे क्या इससे फायदा होगा, मुझे क्या लाभ होगा, जब ये प्रश्न की अच्छा माता जी का काम करें तो मेरा क्या फायदा होगा, ये सब भाव के साथ माँ का काम नहीं हो सकता है। ये नहीं कि हर किसी को माँ का काम करना है, हर कोई तैयार नहीं है, लेकिन यदि, यहाँ हमेशा हमको जोड़ना है कि यदि, श्री अरविंद लिखते इफ यू वांट, वो ये नहीं कह रहे यू मस्ट डू मदर्स वर्क। कोई होगा जिसके अंदर ये अभिप्सा जागेगी। तो इफ यू वांट टू बी अ ट्रू डूअर ऑफ डिवाइन वर्क्स, ट्रू डूअर, ये नहीं कि हमको ये पोस्ट मिल गई या मैं सेंटर में ये काम कर रहा हूँ या जो तो माता जी का काम कर रहा हूँ, नहीं। अगर अहंकार को त्याग नहीं किया है तो माता जी का काम नहीं कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो सकता है कि लोगों को लगे कि माता जी का काम हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। If you want to be a true doer of the divine work, your first aim must be to be totally free from all desire and self-regarding ego. तो फिर हमारा जीवन एक यज्ञ बनना चाहिए, एक आहुति बनना चाहिए। फिर ये नहीं हम कर सकते कि दोनों के बीच में हम दो एम्स के बीच में अपने मन को डिवाइडेड रखेंगे कि नहीं हमको ये भी करना है, अपना भी जीवन पूरा वो करना है और उसमें जो कामना इच्छाएं उसको भी पूरा करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इतना धन कमाना है, उससे ये करना है, और साथ में माता जी का काम नहीं। वो दोनों चीजें साथ नहीं चलती हैं। वो और बात है कि जिस भी रूप में हम माँ से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू बी ए ट्रू डूअर,
सच में यदि हम, तो यहाँ ट्रू जो शब्द है, माता जी का काम बहुत लोग किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रू डूअर, यदि सच में हम माता जी का कार्य करना चाहते हैं तो इस चीज की आवश्यकता है। बहुत सुंदर चैप्टर है। और इसी के साथ अब हम अंतिम चैप्टर पर आते हैं। तो ये पहला चैप्टर, उसकी बात हो गई, दूसरा चैप्टर उसकी बात हो गई, 3, 4, 5, तो यहां तक पत्र। अब ये जो छठा चैप्टर है, इसकी ये बाद में श्री अरविंद जोड़ते हैं, जब वो इस पुस्तक को एक पुस्तक के रूप में, ये 5 पत्रों को, ये एक मैसेज और 4 पत्रों को जब वो पब्लिश करने की बात होती है, तो ये छठा चैप्टर जोड़ते हैं। और कहा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कह सकते, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कि किसी ने उनसे पूछा कि ट्रेडिशन में जो हम माता जी को, तो वो देखते थे माँ के शुद्ध ज्योतिर्मय स्वरूप को, तो उनका प्रश्न भी था। लेकिन जो मान्यता ये है कि नहीं, श्री अरविंद ने इसको बाद में जोड़ा पूरी पुस्तक को कंप्लीट करने के लिए। तो वहां पर वो माँ के चतुस्वरूप की बात करते हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब ये कौन है? ये महादेवियां हैं जो हमको तैयार करती हैं डिवाइन मदर के डायरेक्ट रूपांतरण के कार्य के लिए। क्योंकि अभी हम जब तक नहीं इन चारों के द्वारा गढ़े जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आपको कुछ लिखना है, आपके अंदर एक कविता लिखनी है, या कोई कहानी लिखनी है, या कुछ भी लिखना है ऐसे, तो आपके अंदर पहले तो प्रेरणा आएगी कि अच्छा मुझे ऐसी कहानी लिखनी है। तो ये जो प्रेरणा है, जो ज्ञान के स्वरूप में आती है कि मुझे इस विषय पर एक कहानी लिखनी है, जिसमें एक आपको मोटा मोटी लार्ज लाइंस आती हैं, रूपरेखा आती है, तो वो प्रेरणा का स्रोत महेश्वरी है। फिर उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हम बैठ के तो केवल सोच के नहीं लिख सकते हैं, हमारे अंदर उसका एंथुजियाज्म चाहिए, हमारे अंदर उसको लिखने की स्पष्टता चाहिए। और जब हम लिखें तो ये नहीं कि हम थोड़ा सा लिख करके लेजी हो जाएं और हम कहें नहीं हमसे नहीं होगा। तो ये जो शक्ति है जो हमको प्रेरित करती है कर्म की तरफ, और सच्चाई से कर्म करने के लिए, सत्य निष्ठा से। ये नहीं कि हमारे अंदर प्रेरणा ही लिखते लिखते हम कहें अरे इससे मुझे तो ये लाभ हो जाए, इससे मुझे वो मिल जाए, इससे मेरा मान सम्मान बढ़ जाए। तो वो जो शक्ति हमको तीव्र गति से आगे की ओर ले जाती है, कर्म करवाती है, और हमारे अंदर जितने भी मिथ्या, दंभ इत्यादि जो चीजें उनको तोड़ करके बाहर फेंक देती हैं, वो शक्ति है महाकाली की। ये हमको सच्चा बनाती है ताकि हम प्रेरणा के प्रति सच्चे रहें। फिर उसके बाद जब हम ये लिख रहे हैं तो केवल ये एक रूखा सूखा काम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम, उसके अंदर सौंदर्य होना चाहिए, यानी लेखनी भी सुंदर होनी चाहिए, उसको पढ़ने वाले के अंदर जॉय होना चाहिए। वो तभी संभव है जब हमने उसको प्रेम से कोई चीज की है। ये लेखनी नहीं, किसी भी काम में आप ले लें, चाहे हाथ का कोई काम हो, घर में आप रोटी बना रहे हैं, इसमें ये चारों शक्तियां हर समय तैयार करेंगे। तो जब उसमें प्रेम जुड़ जाता है, जब, तो उसके अंदर आनंद जुड़ जाता है। जब हम वो चीज इसलिए करते हैं कि उसके अंदर एक सौंदर्य हो, जैसे रोटी बनानी है तो रोटी कैसे भी बेल दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बड़े सुंदर ढंग से बनाते हैं। तो कोई भी चीज में जब सौंदर्य जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है और सामंजस्य का भाव जुड़ता है, जैसे आपने बना लिया भोजन, लेकिन वो किस थाल पर परोसेंगे, किस रंग का, उसका किस सब्जी के साथ वो जाएगा, या जब लिख रहे हैं तो कागज कैसा होगा, ये नहीं कि एक फाड़ के कागज टुकड़े पर कुछ लिख दिया। तो ये सारी चीजें महालक्ष्मी का प्रोविंस है। तो हमारे अंदर सौंदर्य बोध, सामंजस्य जगाती हैं, प्रेम जगाती हैं, जिससे हम वो कार्य प्रेम के स्वरूप करते हैं, कामनाओं के अधीन होकर नहीं। और अंत में महासरस्वती जो अब उस कार्य को पूरा परफेक्शन पे ले जाएंगी, यानी कागज, कलम, लेखनी सब कुछ परफेक्ट हो, कोई शब्द, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कुछ भी उसके अंदर त्रुटि ना रहे। जब ये हम तैयार हो जाते हैं तब वो लेखनी हम देते हैं। मैं लेखनी का एक उदाहरण दे रहा हूं कि भगवान को, यानी डिवाइन मदर को, कि माँ ये हमने लिखा है, पहले ये चारों कार्य करेंगी, परफेक्ट बनाएंगे, उसके बाद जब हम उनको देंगे तब डिवाइन मदर उसमें अपना मास्टर स्ट्रोक डालती हैं और रूपांतरण की ओर। वो केवल उस कार्य को नहीं स्वीकार करती है हमें, और हम उस कार्य के द्वारा तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जब ये सारे भाव आते हैं, ज्ञान के प्रति जब हम खुल जाते हैं, जब हम सत्यनिष्ठ होने लगते हैं, जब हम माँ के कार्य में एंथुजियास्टिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं,
मिथ्याभाषी नहीं होते, मिथ्याचारी नहीं होते, जब हमारे अंदर सौंदर्य, प्रेम, सामंजस्य इसका बोध जाग जाता है, जब हम किसी भी कार्य को अपने अंदर हो या बाहर हो, एक क्योंकि परफेक्शन अंदर भी होता है, क्वालिटीज के अंदर, उसको लेकर के आगे चलते हैं, तब हम तैयार होते हैं रूपांतरण के लिए। तो ये छठे चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे हम तैयार होंगे। ये चारों शक्तियां हम लोगों को तैयार करती हैं रूपांतरण के लिए। और अंत में फिर माँ क्या करती हैं और हमको क्या करना है। श्री अरविंद कहते हैं कि हमको माइंड के द्वारा माँ को जज करना कि हमारे जीवन में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कई लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं कि माँ हमसे रुष्ट हो गई हैं, माँ हमारी परीक्षा ले रही है, माँ क्रूएल क्यों है। ऐसा ये सब चीजें यदि हमारे अंदर है तो हमको ये योग के लिए हम तैयार नहीं है। हमको ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि माँ ऐसा नहीं करती है। इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ये हमारी अपने अटैचमेंट्स के कारण हम दुखी होते हैं, हमारी अपनी कामनाओं के कारण हम दुखी होते हैं, हमारे अपने अंदर जो द्वंद्व चलते हैं जिसको हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, इनसिंसेरिटीज के कारण, उसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। और माँ तो हमको इससे परमानेंट सोल्यूशन दे रही है। तो ये हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए। और इसीलिए अंत में कहते हैं कि हमको फिर अंत में माँ के हाथों में सौंप देना है। इफ यू डिजायर दिस ट्रांसफॉर्मेशन देन पुट योर सेल्फ इन दी hands of the mother and her powers without cavil or resistance and let her do unhindered her work within you। तो केविल और रेजिस्टेंस मतलब कि हर क्षण क्वेश्चन करना कि अरे हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। स्वयं को मॉनिटर करना बंद कर देना है। जब हमने माँ के हाथ में सौंप दिया है तो वो ले जाएंगी, वो ठीक जानती हैं कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, बाहर की घटनाओं में अंदर किस अवस्थाओं से गुजरना है, किस सिचुएशन सर्कमस्टांस, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो 3 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए जो श्री अरविंद बता रहे हैं। 3 थिंग्स यू मस्ट हैव: कॉन्शियसनेस, प्लास्टिसिटी, अनरिजर्व्ड सरेंडर। यानी कोई भी चीज सचेत होना है हमको। अनकॉन्शियस चीज जो होती है, माँ का भी काम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, समाधि जा रहे हैं, बस चले गए क्योंकि रोज सुबह जाते हैं, हैबिट से जाते हैं, प्रणाम किया क्योंकि हैबिट से करते हैं, वहां भी जाकर हम अपनी कामनाओं के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहली चीज है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ती है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसको सचेत होकर के करते हैं, कॉन्शियसनेस। दूसरा प्लास्टिसिटी। रिजिडिटी क्या है? हम ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, अगर हमारे अनुसार चीज नहीं हुई तो हम रुष्ट हो जाएंगे, हम मुड़ जाएंगे। प्लास्टिसिटी क्या है? कि हम नमनीय हैं, माँ जैसे ले जाएंगी, जिस तरह से वो कराना चाहती हैं। कभी उन्होंने हमें काम दिया, कभी काम ले लिया, तो उन सब अवस्थाओं में हमारा माँ के प्रति वही प्रेम और श्रद्धा बनी रहेगी। तो प्लास्टिसिटी, जिस तरह से माँ चाहती हैं जैसे काम लेना, वैसे हम प्रस्तुत हैं। और तीसरा जो कहते हैं अनरिजर्व्ड सरेंडर, यानी ऐसा समर्पण जिसमें कोई डिमांड नहीं है। ये नहीं कि हम ये तो करेंगे वो नहीं करेंगे। जैसे रविंद्र जी पूरे वेजिटेरियन है लेकिन उनको काम दिया था अंडे की सर्विस का, तो ये नहीं कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो वेजिटेरियन है, हम अंडा नहीं छुएंगे। तो ये सारी जो रिजिडिटीज हैं, जो सारी हमारे अंदर जो समर्पण, जो रिजर्वेशन है, यानी कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, माता जी अगर ये कहेंगी तो हम ये नहीं कर सकते, ये हम लोग कहते नहीं है लेकिन अंदर में होता है हम सबके अंदर। तो जब तक हम अनरिजर्व सरेंडर नहीं करते तब तक रूपांतरण हमेशा अप डाउन चलता रहेगा। उसमें कई सारी मिक्सचर होंगी, बहुत स्लो प्रोसेस होगी और कभी कभी बहुत कठिनाई भी आ सकती है। तो हमको अपने आप को पूरी तरह सौंप देना है कि अब जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, लेकिन हम केवल ये चाहते हैं कि हम पूरी तरह आपके हो जाएं और जो भी आप चाहती हो हम वैसे बन जाएं। तो उसको कहते हैं अनरिजर्व सरेंडर। और वो सब कुछ बताने के बाद ये भी कहते हैं कि माँ के कृत्य को, माँ के उपाय को, माँ के तरीके को हम जज नहीं कर सकते। नेचुरल है, हमारा तो छोटा सा माइंड है। एक नर्सरी, किंडरगार्टन या समझिए हायर सेकेंडरी का भी बच्चा कैसे जज कर सकता है कि उस शिक्षक के हृदय के अंदर क्या भाव चल रहा है कि वो उसको क्यों ऐसे पढ़ा रहा है। ये तो एक साधारण, कोई बच्चा अपनी माँ के अंदर तो प्रेमी है लेकिन हो सकता है कि वो माँ को मिसजज करे, बार बार डाउट करे कि माँ घर में खाना पका रही है, उसमें क्या डाल रही है, क्यों डाल रही है। तो यहाँ पर हमको माँ डिवाइन मदर के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित होना है। यदि हम ये सब करेंगे तब अंत में आता है कि ये तो निश्चित है कि आज नहीं तो कल अति मानसिक रूपांतरण निश्चित रूप से होना है।
लेकिन द सुपरामेंटल चेंज इज अ थिंग डिक्रीड एंड इनएविटेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉन्शियसनेस, फॉर इट्स अपवर्ड असेंट इज नॉट एंडेड एंड माइंड इज नॉट इट्स लास्ट समिट, बट दैट द चेंज में कम। ये तो निश्चित है कि अति मानसिक रूपांतरण होगा। इवन लॉजिकली अगर हम सोचें मनुष्य पे कैसे विकास रुक सकता है, बट that the change may come, arrive, take form and endure, there is needed a call from below and with a will to recognize and not deny the light when it comes, and there is needed the sanction of the supreme from above। वापस वहीं पर आते हैं जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था कि ये रूपांतरण ऑटोमेटिक नहीं है। हम अगर आश्रम में रहें, 50 साल रहें, कहीं ना जाएं, कुछ नहीं करें, लेकिन यदि एस्पिरेशन नहीं है तो हमको वो नहीं प्राप्त होगा। बिना अभिप्सा के हमको ये मांगना पड़ता है कि, और परसिस्टेंटली, कि हाँ हमको सच में यही चाहिए, हमको दिव्य जीवन चाहिए, हमको ये साधारण जीवन नहीं चाहिए, हमको दिव्य जीवन चाहिए, हमको डिवाइन मदर चाहिए। जब इस भाव से हम जीवन को जीते हैं तो धीरे धीरे फिर दिव्य जननी अपने हाथ में हम लोगों को ले लेती हैं, और फिर धीरे धीरे जो तपस्या जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो प्रयास, जो एफर्ट, उन सब चीज धीरे धीरे अब केवल एक कृपा की धारा में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर हमारे जीवन में सब कुछ जो होता है वो एक कृपा की गंगा जल की तरह बहता है, और पर्सनल एफर्ट, हमारे जो प्रयास हैं, ये सब एक स्थान पे जाके विश्राम में प्रवेश कर जाते हैं। और तब हम ये कह सकते हैं कि माँ वास्तव में हमको अपनी गोदी में लेकर के पूरा सुरक्षित करके जीवन की यात्रा, योग की यात्रा, उसकी उच्चतम ऊंचाइयों तक, गहनतम गहराइयों तक, विशालतम आकाशों तक ले जाती हैं, और पूरी तरह हमको अपना लेती हैं, अपना बना लेती हैं, और हमको हमारे ही अंदर जो दिव्य संभावना है उसको प्रकट कर देती हैं, और दिव्य स्वरूप में हमारे मानव स्वरूप को ढाल देती हैं। जय मां, जय जय मां। Gratitude to the Divine Mother. With deep gratitude, we thank Dr. Shri Alok Pandey ji for gracing us with his presence. We are truly blessed to have received his guidance, which inspires us to walk the path with greater faith, clarity, and sincerity. May the Mother's grace continue to shine through him and touch many more hearts. The most heart-touching line in this talk for me was, Mother gives us everything. What we should give the Mother? We should completely give ourselves to the Mother and become her instrument. On behalf of all gathered here, we offer our heartfelt thanks to Dr. Shri Alok Pandey ji for this enriching and uplifting session. So I am going to read a message of Sri Aurobindo. Sri Aurobindo says on the Mother, the Mother is not only the path, she is also the goal. To unite with her is to unite with the Divine. So I will conclude this session with a prayer. जो आड़ देखे तुम्हारी रूपा, तुम्हारी कृपा परस, जन्हारे देखे तारारे देखे
मोरू की हंस जुआड़ देखे माँ फूले फूले तुम्हें रंगर संभार सबु मुखे तुम्हें सुरर आसर माँ फूले फूले तुम्हें रंगर संभार सबु मुखे तुम्हें सुरर आसर मो भीतरे खाली तुम्हें मो भीतरे खाली तुम्हें मोह मोह बास मोह मोह बास जुआड़ देखे माँ सागर ढेउ ढेउ रे तुम्हारी संगीत रागिणी तले संज सकाळे पक्षीर ताले प्रकृति वंदना कूळे ढाळे सागर ढेउ ढेउ रे तुम्हारी संगीत रागिणी तोळे संज सकाळे पक्षीर ताळे प्रकृति वंदना कूळे ढाळे सबुठी तुम करुणा झरा सबुठी तुम करुणा झरा आनंद उच्छ्वास आनंद उच्छ्वास जुआड़ देखे तुम्हारी रूप तुम्हारी कृपा परस जन्हर देखे तारार देखे मोरू की हंस जुआड़ देखे माँ माँ मो माँ माँ मो माँ माँ मो माँ माँ मो माँ. Gratitude to the Divine Mother and Vande Mataram to everyone.